اور یہ جو ہماری جماعت ہے جمعیت علماء، اس کا تعلق شہر نبی سے بھی ہے. ہمارے موجودہ صدر محترم، ہمارے استاد، ہمارے مربی حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم، آپ حضرات میں سے بہت سو نے حضرت سے پڑھا ہوگا. ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم. جمعیت علماء صوبہ کرناٹک کے صدر مولانا عبدالرحیم رشیدی، نائب صدر مولانا شمیم سالک مظاہری، جنرل سیکرٹری محب اللہ خان امین کی سرپرستی میں بروز اتوار 22 ستمبر 2024 بعد نماز عشاء مدرسہ رحمت العلوم گوبی گیٹ شہر ٹمکور میں شہر جمعیت علماء اور مولانا راشد خان گیرہلی ٹمکور کی موجودگی میں ایک مجلس منعقد ہوئی، جس میں تمام کی اتفاق رائے سے صدر جمعیت علماء بنگلور ضلع مولانا صلاح الدین مظاہری نے مفتی محمد نصر اللہ خان مظاہری کو جمعیت علماء شہر ٹمکور کا صدر اور جنرل سیکرٹری مفتی توحید الرحمان قاسمی کو منتخب کیا، جبکہ نائب صدر مولانا راشد خان گیرہلی ٹمکور، نائب صدر مولانا الطاف، نائب صدر مولانا سعود اور مزمل احمد عبدالقادر جیلانی اور نائب سیکرٹری حافظ خالد، سیکرٹری حافظ صداقت مفتی رضا الحق رشادی کو طے کیا. اس موقع پر تمام کی متفقہ رائے سے شہر کے نوجوان محمد شعیب کو خازن بنایا گیا. 21 اراکین عاملہ شہر ٹمکور جمعیت علماء کی کمیٹی عافیت کے ساتھ عمل میں آئی. مشاہدے کے طور پر رکن جمعیت علماء صوبہ کرناٹک حافظ محمد فاروق، مولانا آدم علی، مفتی عبدالرزاق شریک رہے. اس موقع پر مولانا صلاح الدین مظاہری اور مولانا شمیم سالک مظاہری نے بتایا کہ اس طرح صوبہ کی کئی اضلاع اور شہروں میں جمعیت علماء کی کمیٹیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بنگلور ایسٹ جمعیت علماء کی کمیٹی عمل میں آنے کے بعد شہر ٹمکور کی کمیٹی کو عمل میں لایا گیا، جس میں شہر کے علماء نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور قوم و ملت کی صحیح خدمات انجام دینے کا وعدہ کیا. شہری جمعیت کے صدر کے لیے میں نام پیش کرتا ہوں. متفقہ طریقے سے علماء کے مشورے سے میں نے طے کیا ہے کہ جو ہے حضرت مفتی نصر اللہ صاحب کو صدر بنایا جائے. آپ کی کیا رائے؟ تائید کرتے ہیں؟ آپ کا کہاں تائید ہے سب شہر ٹمکور میں ماشاءاللہ جمعیت علماء کی کمیٹی تشکیل کے لیے آپ جو ہے کمیٹی بنائے ہیں، اس میں مفتی نصر اللہ صاحب کو شہر جمعیت کا جو ہے صدر بنے اور مفتی توحید صاحب کو جنرل سیکرٹری. تو اس تعلق سے آپ جانکاری دیجیے صدائے اردو نیوز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر 2 سال میں ایک مرتبہ انتخاب ہوتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی ہم یہاں آئے تھے اور انتخاب ہوا تھا شہر کا، تو اس موقع پر مولانا اسلم صاحب یہاں پر تھے، ان کو صدر بنایا تھا ہم نے. نائب صدور میں تھے مولانا راشد خان صاحب تھے، مفتی نصر اللہ خان صاحب تھے اور بھی کچھ افراد تھے، مزمل صاحب تھے. تو اس مرتبہ جو ہے مولانا اسلم صاحب کہیں دوسری جگہ منتقل ہو گئے بنگلور وغیرہ میں. آج ان سے میری بات ہوئی تھی انتخاب سے پہلے، میں نے ان کو فون کیا تھا مسجد ہی میں آ کر کے کہ مولانا گزشتہ مرتبہ میں آ کر کے آپ کو صدر بنایا تھا، اس مرتبہ بھی آیا ہوں اور آپ کی غیر موجودگی بڑی کھٹک رہی ہے، کہ آپ کی اجازت ہے؟ میں نے باقاعدہ ان سے اجازت لی کیونکہ یہاں ہم نے آپ کو صدر بنایا تھا، اس وقت آپ نہیں ہیں. تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا کہ بالکل مولانا، وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھا آدمی وہاں پر منتخب کرے، صدر بنائے کسی کو. تو الحمدللہ ان کو بھی یہ خبر پہنچانا ضروری ہے. با اتفاق رائے، سب کے اتفاق سے یہاں کی منتظمہ کے رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی نصر اللہ خان صاحب کو جو ہے یہاں کا صدر منتخب کیا گیا ہے. اور نائب صدور میں ان کے مولانا راشد خان صاحب ہیں اور مزمل صاحب ہیں اور بھی مولانا الطاف صاحب ہیں اور ایک کوئی ہیں حافظ سعود صاحب ہیں، جیلان صاحب یہ ان کے نائب صدور ہیں. اور سیکرٹری ہم نے جو ہے نوجوان فاضل مفتی توحید صاحب کو یہ ذمہ داری جنرل سیکرٹری کی دی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے ٹمکور شہر کو بہت آگے تک لے جائیں گے اور جمعیت کا کام کریں گے. اور گزشتہ ٹرم کے جو ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب تھے شعیب صاحب، ان کو اس مرتبہ کچھ بھاری ذمہ داری ہم نے دی ہے. ان کو جو ہے ہم نے خازن بنایا ہے جمعیت علماء شہر ٹمکور کا. یہاں پر پرانے ہیں اور چونکہ ان کے تعلقات کاروباریوں سے بہت زیادہ ہیں اور خود
भी वो एक ताजिर हैं, इसलिए हम सब ने मुनासिब भी समझा और यहाँ के सब लोगों ने भी जो है ये राय दी, मशवरा हमसे दिया, किया भी मशवरा हम लोगों ने भी किया, तो मुनासिब यही समझा कि उनको जो है खाजिन बनाया जाए। और पहले हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रज़ामंदी अपनी दी और इजहार किया कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे ज़िम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। तो उनको हमने खाजिन बनाया है और मुफ्ती तौहीद साहब के साथ 1-2-4 आदमियों को हमने जो है सेक्रेटरी के तौर पर, हाफिज़ मौलाना सदाकत साहब और 1-2 कोई हैं, उन लोगों को भी हमने जो है ज़िम्मेदारी दी है। और यहाँ की एक बॉडी बनी है 21 अफराद पर मुश्तमिल, अरकान आमिला और कुछ मदऊइन खुसूसी भी होंगे इंशाअल्लाह और काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो जमात आज बनी है यहाँ पर, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है मरकज़ से, यानी हमारे रियासत मौलाना आदम साहब तशरीफ़ ला मरकज़ से यानी सूबे कर्नाटक से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह राय मशवरा होगा, ये लोग भी वहाँ तशरीफ़ लाएँगे और हम लोगों को भी मदऊ करेंगे, तो हम भी यहाँ आएँगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीद है कि काम को ये आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। मौलाना एक बात है कि जैसे मुफ्ती नसरुल्लाह साहब हैं और हमारे मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब हैं, हमारे शुएब भाई जो अभी इनको खाजिन बनाया गया है, इन्हीं लोगों को आपको चुनने का, और इसमें कोई ख़ास बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, चूँकि पहले थे रद्द-बदल तो हुआ है ना। गुज़िश्ता मरतबा यहाँ पर मौलाना असलम साहब थे, उनकी जगह मौलाना नसरुल्लाह साहब को सदर बनाया, शुएब साहब सेक्रेटरी थे, मुफ्ती तौहीद साहब को बनाया है, खाजिन जीलान साहब थे, खाजिन शुएब साहब को बनाया। तो तब्दीली तो आई है, ऐसा नहीं कि वही है। और जो इत्तेफाक राय से होता है वो उसमें फ़ायदा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह होता है। और इन लोगों में से किसी ने ओहदा तलब नहीं किया, हर एक ने कहा कि मुझे ना बना। मैं देख रहा था मुफ्ती तौहीद साहब का जब नाम आया तो बार बार कह रहे थे कि नहीं आप रहें, और मुफ्ती नसरुल्लाह साहब भी कह रहे थे कि किसी और को सदर बनाए, मौलाना राशिद खान साहब तैयार नहीं हो रहे थे कि नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, हर कोई ओहदे से हट रहा था। तो ये खुद एक मकबूलियत की अलामत है कि ये ओहदे जो उनको मिले वो अल्लाह की तरफ से मिले। असल ओहदा नहीं है, असल तो काम करना है। इसमें सब बराबर हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये सब काम करने के लिए ज़वाबित उसूल होते हैं, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, खाजिन वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे मौलाना शमीम सारिक साहब, आप रियासती नायब सदर हैं, अज़ला के कई रियासत के कई अज़ला में आपने जो कमेटियाँ बनाने का काम शुरू किया, तो आज की इस कमेटी के ताल्लुक से आपका क्या बयान? वो हाथ पकड़ दे छोड़। माशाअल्लाह आज तुमकुर के शहरी जमीयत का इंतखाबी प्रोग्राम बहुस्न खूबी अंजाम पजीर हुआ और काबिल तारीफ़ है और पुराने जमीयती है। हज़रत मौलाना राशिद साहब, इनकी सरपरस्ती और ताउन की वजह से, और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि यहाँ के फ़ाल, मुसद्दक, मुहक्क़क़, मुनज़्ज़म और बावक़ार शख्सियत हमारे दोस्त हज़रत मौलाना नसरुल्लाह साहब सदर बने शहरी जमीयत तुमकुर के। फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी एक मौलाना तौहीद साहब, मुफ्ती भी माशाअल्लाह, और बहुत ही संजीदा और बहुत ही हुस्न अखलाक के पैकर भी हैं, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीक़े से इंशाअल्लाह इस काम को अंजाम देंगे। और मैं मजमूई तौर पर जितने भी ओहदेदार, ज़िम्मेदारान, मेंबरान तश्कील आज दी गई है, हम उन तमाम को अपनी तहे दिल से जो है मुबारकबादी पेश करते हैं। और जमीयती बात तो जमीयत के इंतखाबी प्रोग्राम के दरमियान हो चुकी है। अल्लाह ताला यहाँ की कमेटी को मजबूत रखे और इखलास पैदा करे, दिखावा से और मंशा और तमाम नफ्सियाती चीज़ों से महफूज रखे। मौलाना अक्सर मैं तुमकुर आता हूँ, जमीयत के काम को देखता हूँ जिसमें मौलाना राशिद खान साहब का अहम रोल रहता है, काम के एतबार से, लोगों को जोड़ने के एतबार से। तो मौलाना राशिद साहब जो है फ़ाल रहते हैं जी। तो माशाल्लाह पहले ही से हैं वो, इससे कबल से भी काफ़ी अरसे से वो जमीयत से जुड़े हुए हैं। और आप खुद जो है चूँकि यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी जमात का एक बड़ा हिस्सा यूपी ही से है, सदारत भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, देवबंद वगैरह सब यूपी का ही है हिस्सा। मौलाना राशिद खान साहब भी वहीं के हैं, वहीं के पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके अंदर जमीयत ज़्यादा पाई जाती है और उन लोगों ने जमीयत को काफ़ी ज़्यादा समझा है। और एक ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर शुमाली हिंदुस्तान जो है वो जमीयत को बहुत ज़्यादा और जल्दी समझता है बनिस्बत दूसरे हिस्सों के अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वास्ते हमने जो है उनको नायब सदर, बल्कि सदारत की ही हमने पेशकश की थी। ये उनका अपना बड़कपन है कि उन्होंने जो है नौजवान फाजिल हज़रत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह खान साहब को आगे बढ़ाया, उनको सदर बनाया और वो खुद नायब सदर रहे। जी। ये हमारे भाई और पुराने 30 साल के दोस्त हैं, उभरते हुए नौजवानों के लीडर शुएब साहब हर दिल अजीज़ है। और लोग इनको गैर उलमा में शुमार करते हैं, लेकिन उलमा की सोबत इस कदर मुयस्सर है इसको कि ये भी एक आलिम कह सकते हैं इनको, और महबूब उलमा का खिताब दे सकते। ये हमारा भाई दोस्त ने
बहुत कोशिश की। अगर मैं ये कहूँ कि बेंगलोर ये टुमकुर शहर के अंदर अगर शहरी जमीयत का क़याम अमल में आया है तो हमारे दोस्त, हमारे भाई शोएब भाई की कुर्बानी का नतीजा है। अल्लाह इनकी मुफ्ती साहब नसरुल्लाह साहब जी, देखिए आप सबकी इत्तेफाक राय है और इसमें मौलाना राशिद साहब जो है आपके नायब सदर भी रहे हैं। आपको शहर टुमकुर का जमीयत उलमा का सदर इंतखाब किया गया है, जिसमें मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, मौलाना शमीम सादिक हैं, मौलाना राशिद साहब हैं और रियासत कर्नाटक के हमारे बड़े ओहदेदारान भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। तो आप क्या महसूस करते हैं मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस लायक नहीं था कि सदर के ओहदे को संभालूं। मैं तो एक खादिम हूँ, उलमा का खादिम हूँ, जमीयत उलमा का खादिम हूँ। खादिम की तरह मैं काम करता हूँ। बस हमारे बड़े उलमा राशिद खान साहब हैं, मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं और रियासत के बड़े अकाबिर उलमा ने मुझ पर एतमाद करते हुए ये ज़िम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह वो जो भी हमारे बड़े कहेंगे उसको, उस ज़िम्मेदारी को संभालते हुए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। किस हद तक ले जाएंगे? इंशाअल्लाह जितनी उम्मीद वो रखेंगे इंशाअल्लाह उस उम्मीद से एक कदम आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। राशिद साहब कह रहे थे कि हर महल्ले में इसका काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ये तो एक बुनियाद है, एक जमात बनी है। हमारा इरादा यह है कि हर मोहल्ले में एक जमात बनाए जो तालीम पर भी काम करे। और यहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा है, तो नशे के लिए, नशे को पाक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसके भी लिए एक जमात बनाई जाए। इंशाल्लाह उसको भी बनाएंगे। उसी के साथ साथ रिफाई काम हमको करना है, जैसे गुरबा, मसाकिन हैं, बीमार हैं, यतीम हैं, इनके दरमियान भी इंशाल्लाह एक जमात तश्कील देकर उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। राशिद साहब, आपको जमीयत बनाने में आपका बड़ा अहम रोल रहा है। इसी देखिए नौजवान मुफ्ती तौहीद साहब आपको जनरल सेक्रेटरी आपने इंतखाब किया है, शुएब नौजवान को भी बहुत सारे मझेले हैं। कौम को आप उलमा की सख्त ज़रूरत है, जमीयत की सख्त ज़रूरत है, जो सदियों से जमीयत काम करते आ रही है। आज हमारी मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम लड़कियाँ गैरों के साथ चले जा रही हैं। इल्म ना हो या इल्म है, इल्म पढ़ी लिखी लड़कियाँ जाने, ऐसे माहौल ख़राब होता जा रहा है। तो आप जो है सरबराह हैं और बुज़ुर्ग आलिम दीन मुफ्तियान कराम हैं और आपने जो है जमीयत के जो है बनने में आपका अहम रोल रहा है, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है जी। जमीयत ऐसी जमात है कि उसको बनाई नहीं जाती। जमीयत तो खुद बनी बनाई है। जमीयत के साथ हम जुड़ें, इसमें हमारी सआदत है। हमारे लिए कोई कमाल की बात नहीं है कि हमने जमीयत बनाई। जमीयत के साथ जुड़ना जो है हमारे लिए सआदत की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी ये अल्लाह की तरफ से एक मदद है। और ये नौजवान उलमा जो हमारे साथ हैं, हमारे सदर मोहतरम जो इस वक्त नए सदर बनाए गए हैं मुफ्ती नसरुल्लाह साहब, इनसे हमें बहुत तवक्कुआत हैं कि हम हर महल्ले में जाकर, महल्ले के हर घर में जाकर जमीयत का पैगाम पहुंचाएंगे कि जमीयत के पैगाम को लेकर चला जाए और ख़वातीन में तालीम का रुझान पैदा किया जाए और उनमें जो है इसका दर्द पैदा किया जाए कि जो है हमारी इफ़्फ़त और इस्मत क्या चीज़ है। इसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। मैं इसकी उम्मीद रखता हूँ कि नौजवान साथी हमारे शुएब साहब जिन्होंने जमीयत बनाने के लिए पिछली मरतबा बहुत कोशिश, इन्हीं की अंतक बहुत जद्दोजहद थी इनकी कि इन्होंने जो है साथ दिया मेरा और मैंने इनका साथ दिया और जमीयत बनी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नसरुल्लाह साहब साथ में आए और फिर जो है हमने जमीयत के प्लेटफार्म को बढ़ाया। माशाअल्लाह आज ये मौका मिला है कि तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ा तौर से यहाँ इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर जद्दोजहद के साथ ये काम किया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप इंशाअल्लाह आइंदा टर्म में देखेंगे कि इसके नताइज क्या सामने आएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना, मुल्क के हालात बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। हर जगह अस्तराब व मायूसी का आलम है मुसलमानों के माबीन। और इस तरह जो है हमारे शहर टुमकुर और टुमकुर ज़िला सतह पर एक अच्छा प्रोग्राम हो तो इसका बड़ा फ़ायदा ऐसा मैं महसूस करता हूं। जो भी हमें बड़ों से हिदायत मिलती रहेंगी हम उसके ऊपर इंशाअल्लाह जमीयत अमल करती रहेगी। हम अपना कुछ रोल नहीं होगा उसमें, बड़ों से जो कुछ हमें हिदायत मिलेंगी इस बारे में, क्योंकि ये मुल्की मसाइल हैं, मुल्की मसाइल के ऊपर हमें अपने बड़ों से रुजू करना पड़ता है। जमीयत हमारी बड़ी है, जमीयत के बड़े हज़रत मौलाना सैयद अरशद बंदी साहब है, उनकी तरफ से या स्टेट की जमीयत की तरफ से जो भी हमें हिदायत मिलती रहेंगे इनके ऊपर चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह अमल होता रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त में नौजवान मुफ्ती तौहीद साहब से पास में बात करने आ रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती तौहीद साहब जो हैं एक मदरसा चलाते हैं, अली पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं। दीन दुनिया को साथ लेकर के कौम के आइंदा नस्लों के बच्चों की तालीम और तरबियत का मायार
बना रहे हैं। अब ये शहर टुमकुर की जमीयत के जनरल सेक्रेटरी इंतखाब हुए हैं, सबकी राय से हमारे उलमा कराम ने उनको इंतखाब किया। आइए बात करते हैं। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जो है जिस तरीक़े से हज़रत ने फरमाया कि ये काम जो है हम जो कर रहे हैं काम, ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमारा कोई कमाल नहीं है कि अल्लाह ने जो है तौफ़ीक़ दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है दीन का काम करने के लिए अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे जो भी तकाज़े आएंगे इंशाअल्लाह, हम तो इसके अहल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो है ये ज़िम्मेदारी मिली है और हमारे असातिज़ा की तरफ से ज़िम्मेदारी मिली है। मैं अभी भी परेशान हूँ कि ज़िम्मेदारी को कैसे बर्दाश्त करूँ। माशाअल्लाह हमारे शुएब साहब जो है पिछले साल, उससे पहले साल जो मेहनत कर जो नतीजा जो निकाले थे, माशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश ये थी कि शुएब साहब ही जो है जनरल सेक्रेटरी रहें। मैं बार बार इसरार करता रहा, लेकिन मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की तरफ से जब मेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारी आई है तो मैं दुआ करता हूँ कि इसके हक़ को जो है सही अदा करूँ और इखलास के साथ और कौम की मिल्लत की खिदमत का एक जज्बा रखूँ। अल्लाह ताला। आपके सदर एक बुजुर्ग आलिम दीन मुफ्ती हैं, आपको एक अच्छी रहबरी मिलेगी। जी, ये जमीयत के सदर भी हैं और ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैं हज़रत का शागिर्द भी हूँ। 2002 में जो है जब अनस बिन मालिक का मदरसा जब शुरू हुआ हमारा, तो उसमें जो है हमारे सबसे पहले उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब थे। इंशाअल्लाह 22 साल से सीखता आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी जो है हज़रत के ज़रिए से जो है सबक पढ़ता रहूँगा और सीखता रहूँगा। इंशाअल्लाह खिदमत करने की तौफ़ीक़ अल्लाह से मांगता रहूँगा। नाज़रीन देखिए, शहर टुमकुर के लिए जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से जनाब शुएब साहब खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब इनका ओहदा कुछ और तब्दील होकर पूरा ख़जाना इनके पास जा रहा है। ये उलमाए कराम जो अंबिया के वारिसिन हैं, इनको बेहतर समझ करके इनको खाजी बनाया। आइए आप खाजिन हैं, पूरा ख़जाना आप ही के पास होगा। जी, उम्मत का माल है, उम्मत पर खर्च करेंगे, ये ख़जाना ऐसी बात नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे जो इंतखाबात हुए हैं बहुत जोश के साथ और अमन के साथ हुए हैं, और फिर हमारी एक आज ऑफ़िस भी ओपन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने सुबह से हमारे अकाबिरीन आए हैं जो इंतखाबात कराने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एक ही, मैं समझता हूँ पूरे सूबे के अंदर ये एक ही इंतखाब ऐसा है टुमकुर शहर का जिसके अंदर पूरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। कि हमारे सूबे के सदर अब्दुल रहीम साहब भी सुबह हुबली में थे, तो फिर मेरे फ़ोन से बात हुई कि हज़रत आप भी आना पड़ेगा, तो हज़रत भी बेंगलुरु जाते हुए फिर माजरत का चाहिए उन्होंने, मगर फिर मैंने उनसे बहुत अदबन गुजारिश की तो फिर वो भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह जो ज़िम्मेदारी मिली है, मैं तो आप ये बात सवाल पूछ रहे थे, जनरल सेक्रेटरी था तो जो खिदमत थी वो ओहदे पर रहकर मैंने काम किया कि उस ओहदे पर रहकर हमने वायनाड के लिए हमने जो बड़ा चंदा कर हमने वायनाड के लिए भेजा, और हमारे पूरे मुल्क के नायब सदर मौलाना सैयद असजद मदनी साहब दामद बरकातुम हमारे शहर तशरीफ़ लाए, तो उसका भी प्रोग्राम हमने बहुत शानदार किया। आप भी उस प्रोग्राम में थे, आप भी उस प्रोग्राम को आपने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिम्मेदारी मिलेगी इंशाअल्लाह जिम्मेदारों को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपको एक नहीं दो मुफ्तियाँ निकालेंगे। जी इंशाअल्लाह, ये दो नहीं 3 दिन है। हमारे मौलाना राशिद खान साहब दामा बरकातुम में मुफ्ती हैं, वो अपने आप मुफ्ती नहीं कहते हैं, मगर 3 दिन मुफ्ती ऐसा कहो कि इंशाअल्लाह इन तीनों मुफ्तियों की सरपरस्त में इंशाअल्लाह एक बुजुर्ग, वही बोल रहा हूँ मैं, 3 मुफ्तियाँ इकराम हैं इंशाअल्लाह। इन तीनों की सरपरस्ती के अंदर में जो भी सरपरस्ती में जो भी हमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है इंशाअल्लाह उसको पूरा मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, शहर टुमकुर के अंदर ले लेता हूँ। शहर टुमकुर के अंदर देखिए एक बेहतरीन कमेटी जो है बनी हुई है माशाअल्लाह। हमारे मौलाना सलाउद्दीन साहब और मौलाना शमीम सालिक साहब और बेंगलुरु से रियासत कमेटी की तरफ से आए हुए अकाबिरीन उलमा जमीयत उलमा ने टुमकुर शहर पहुंच करके एक दफ्तर का अहतमाम किया। उसी के साथ मुफ्ती नसरुल्लाह साहब को शहर टुमकुर जमीयत उलमा का सदर इंतखाब किया, साथ में मुफ्ती तौहीद साहब को और ख़जानची जो है शुएब साहब को, और आपका मुफ्ती रज़ाउल हक साहब को नायब सदर किया है जी, सेक्रेटरी का इंतखाब किया है। मैं इनको भी बात करना चाहता हूँ। एक बेहतरीन जमात बनी है जमीयत की तरफ से, उलमा ही हैं जो हिंदुस्तान को जो है अमन शांति का पैगाम दे सकते हैं और कौम मिल्लत की रहबरी उनकी तहफ़्फ़ुज़ में काम कर सकते हैं, यही जमात है। मौलाना क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करते हुए दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़े दरूद पेश करते हुए
اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ جو یہ انتخاب ہوا مجھے معلوم تھا، لیکن میرا نام اس میں ہے کر کے مجھے معلوم بھی نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ من جانب اللہ ہوا، اللہ کی جانب سے. میں پرسوں ہی 3 دن پہلے پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کام غیر اختیاری طور پر آپ کے ذمہ آ جاتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جو کام من جانب اللہ ہوتا ہے اس میں ضرور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور خیر ہی خیر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس لائق نہیں ہیں، بس اللہ کی جانب سے یہ چنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کام لے گا. الحمدللہ ہمارے صدر صاحب جیسا کہ ہمارے مفتی توحید صاحب ہم عصر ہم ساتھی بھی ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. بس ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک انسانیت پر جو جمعیت کا پلیٹ فارم ہے اس پر انشاءاللہ سب مل کر ایک جہتی کے ساتھ کام کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری جمعیت کو قبول فرمائے اور ہم سے جو ہو سکے خدمات اللہ ہمارے حسب لیاقت کو لے اور ہمارے خدمات کو قبول فرمائے. میں پھر آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دربار رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ درود پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مفتی صاحب اگلا پروگرام کیا ہوگا؟ جمعیت تو بن گئی ہے انشاءاللہ ابھی تو ذمہ داری دی گئی ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام جیسا کہ ہمارے آج آفس کی افتتاح ہوئی ہے تو انشاءاللہ فوراً ہم لوگ ایک میٹنگ بلائیں گے. میٹنگ بلانے کے بعد اگلا قدم انشاءاللہ ہم طے کریں گے انشاءاللہ.